So good morning, my dear students. You all are fine and enjoying the class. So today again I will move on to the topic determiners. So I hope you are finding the lesson very comfortable and very enjoyable, very interesting, and everything is becoming clear on this digital platform. So I have been teaching you determiners, and today also I will be continuing this lesson, part 4 of this lesson, determiner. This topic is determiners. Okay. So now you are fully aware of this topic. You have understood what determiners are, what predeterminers are. You have understood. I was just explaining predeterminers in the last class, and I had been giving examples of the types of determiners. So what are the types of predeterminers? I have discussed with you. First I have discussed with you multipliers. Second I have discussed with you fractions. Third I have discussed with you intensifiers. Am I right? So today I will be discussing with you others. Category of determiners don't fall in multipliers, fractions or intensifiers. Okay, that's why the category is separated from all the three other predeterminers. Okay, so move on to the next slide. So this already I have taught you. This is an example of intensifiers. Is it clear to you? Intensifier is a predeterminer. This I have explained to you. So I will move on to the next slide. Come to others. Please listen to me attentively. Okay. As I have told you just now, that others fall in different category of multipliers, fractions, intensifiers. It doesn't match with them. Okay. This is totally different from them. Okay. That's why it has been categorized as others. Okay. Few determiners fall in category of others. कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि अदर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. These are used to refer an entire amount. So basically these determiners refer to the whole amount, entire amount. उसमें क्या था फ्रैक्शन में, मल्टीप्लायर्स में पढ़े थे कि मल्टीप्लायर्स में क्या पढ़े थे 2 into 2 अगर करें तो 4 हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग इफेक्ट था उसमें. फ्रैक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिवाइड किया जा रहा है, जैसे 1/2, 2/3, ये सब फ्रैक्शंस हो गया. फिर हम लोग इंटेंसिफायर्स पढ़े थे जिसमें ज्यादा बल देना पड़ता है, गिविंग मोर स्ट्रेंथ, वेयर some emotional feeling was also discussed. Okay, some emotional feeling was also discussed in intensifiers. You see, what a lovely day. He told us quite an interesting story. All this relates to certain emotions which has been expressed in intensifiers. Okay. So here the entire amount is taken. Words like all and both are other determiners. Words like all and both are other determiners. ये सब other determiners की कैटेगरी में आता है. ठीक है? Clear? For example, he invited both the families to the dinner. Both. You see, both the families to the dinner. फैमिलीज टू द डिनर. फैमिलीज की बात कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं? फैमिलीज की. ठीक है, हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं. फैमिलीज की बात कर रहे हैं बेटा. ओके. फैमिलीज यहां क्या है? फैमिलीज रिफर टू नाउन ओवर हियर. ही इनवाइटेड बोथ द फैमिलीज टू डिनर. फैमिली से पहले क्या आया है? द आया है. This is basically a determiner. And what kind of determiner is this?
articles. It falls in the category of articles. I will be teaching you articles also. And before this, both comes. He invited both the family to dinner. मतलब दोनों परिवार को इन्वाइट किया डिनर के लिए, दोनों. ठीक है? तो both is basically a predeterminer. It is a predeterminer which falls in the category of others. Is it clear? It is a predeterminer which falls in the category of others. Okay? You broke both his hands in the accident. Again you see both. Hands. ये noun है. ठीक है? This is a noun. And again both is a predeterminer. Both is a predeterminer. What type of predeterminer it is? It falls in other category. Is it clear? Now next one. She saw all those people. All her, actually this is two sentences. Okay, don't get confused. I'll read out the first sentence. She saw all those people. All those people. Again here, people is a noun over here. People क्या है? Noun है. समझ पा रहे हैं? और उससे पहले कौन क्या आया है? दोज आया है. दोज क्या है? ये भी डिटर्मिनर है. कौन सा डिटर्मिनर है? ये कौन सा डिटर्मिनर है? डेमोन्स्ट्रेटिव है. अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है, इसीलिए तुम लोगों को पता नहीं चलेगा. दिस, दैट, दिस, दोज, these are demonstratives. Okay, I'll explain to you in detail, don't worry. And before this, a predeterminer is there. All. And this falls in which category? Others category. Is it clear? Now it is clear. One more example you see. This should be capital, all. Okay. All her friends came to her wedding. All her friends came to her wedding. You see, उसके सारे दोस्त उसके वेडिंग में आए, उसकी शादी में आए, उसके विवाह में आए. हर, हर क्या है? हर यहां प्रोनाउन है. ओके, तो हमारा कंसर्न यहां नहीं है, हमारा कंसर्न है डिटर्मिनर्स का. इसीलिए कम टू फर्स्ट नाउन्स. ओके, फ्रेंड्स यहां क्या है? फ्रेंड्स क्या है? नाउन है. और उससे पहले क्या लगा है? हर. हर बिकम्स डिटर्मिनर. ओके, एंड हियर ऑल. डिटर्मिनर से पहले प्री डिटर्मिनर आया है. ये प्री डिटर्मिनर आया है जो कि अदर्स कैटेगरी में है. ठीक है? दिस फॉल्स इन अदर कैटेगरीज. ओके, नाउ यू सी, ये तो हम लोग ऑल एंड बोथ के बारे में पढ़ लिए. अब आ जाइए ऑल, हाफ और बोथ. ये तीनों प्रीडिटर्मिनर्स के बारे में हम समझाएंगे जो कि अदर्स का कैटेगरी में आते हैं. ध्यान दीजिएगा प्लीज. With singular countable nouns, we can use half and all, but not both. Singular countable nouns. Countable nouns can be counted, you know very well. Countable nouns. And countable nouns are singular and plural. Okay. So with singular countable nouns, you can use half and all. ये दो जो वेरिएबल है, आई मीन अदर्स कैटेगरी में जो प्रीडिटर्मिनर आता है, हाफ और ऑल, इसके यूज कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. याद रखिए. ओके, लेकिन बोथ का हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में यूज नहीं कर सकते हैं. बोथ का हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में नहीं यूज कर सकते हैं बेटा. ठीक है? दैट मस्ट बी यूज्ड इन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सी, हाफ ए बन इज बेटर देन नन. बन क्या होता है? बन ब्रेड को बोलते हैं. ब्रेड को बोलते हैं. ठीक है? ब्रेड को बोलते हैं बन. पावरोटी तुम लोग खाते हो ना, गोल वाला, उसी को खास करके बन बोला जाता है. ठीक है? ऐसे रोटी को भी बोल सकते हो. तो हाफ ए बन इज बेटर देन नन.
इसका मतलब हुआ आधा अगर बन मिल जाए, रोटी मिल जाए, नहीं मिलने से अच्छा है कि आधा ही रोटी मिल जाए। हमें 2 रोटी नहीं चाहिए, आधा रोटी मिल जाए, उसी से काम चल जाएगा। यही बात कह रहा है। तो यहां बन से पहले क्या आया है? ए आया है। ए इज अ डिटर्मिनर, क्लियर। उससे पहले क्या है? हाफ। हाफ इज अ प्री डिटर्मिनर एंड दिस फॉल्स इन अदर्स कैटेगरी, क्लियर। एनी डाउट? उसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, बोथ ए बन आर बेटर देन नन। बोथ ए बन, बोथ कहां से यूज होगा बेटा? सिंगुलर में। इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बोथ आर नॉट यूज, just to confuse you, this example has been given. Okay, this is basically wrong, totally wrong. both a one नहीं हो सकता है, half a one होगा, 1/3 a one होगा। हाँ, लेकिन 1/3 यहां नहीं लगेगा क्योंकि ऑल हाफ बोथ लगाना है, ठीक है। 1/3 फिर दूसरे कैटेगरी में पड़ जाता है, वो इंटेंसिफायर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, फ्रैक्शंस में आ जाएगा, वो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां बोथ नहीं लग सकता है, एक चीज में बोथ लगता है। बोथ ए स्टूडेंट हैज कम कर सकते हैं, नहीं ना, ये कैसे होगा? बोथ द स्टूडेंट्स हैव कम, बोथ द स्टूडेंट्स हैव कम होगा, इसीलिए बोथ ए बन आर बेटर देन नन। ओके, अगर ये रहता बोथ बंस रहता, प्लूरल रहता, तो एक करेक्ट हो जाता है। दिस वुड हैव बीन करेक्ट। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ऑल माई ऑफिस हैज बीन डेकोरेटेड। ऑल माई ऑफिस हैज बीन डेकोरेटेड। यहां ऑफिस क्या है? दिस इज अ नाउन। उससे पहले क्या आया है? प्री डिटर्मिनर माई। उसके पहले ऑल क्या है? सॉरी, ये डिटर्मिनर है, सॉरी। तुम माई इज बेसिकली डिटर्मिनर, माई इज डिटर्मिनर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑल इज प्री डिटर्मिनर। ओके, सो माई इज डिटर्मिनर ओवर देयर एंड ऑल इज प्री डिटर्मिनर। ओके, प्री डिटर्मिनर से पहले प्री डिटर्मिनर आता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो प्री डिटर्मिनर कौन सा कैटेगरी का है? अदर्स का, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। With plural countable nouns, we can use all, half and both predeterminers. Singular countable nouns के साथ हम लोग both का नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग half का और all का यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसे both नहीं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ये तीनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल को भी यूज कर सकते हैं, या ऑल को भी यूज कर सकते हैं, हाफ को भी यूज कर सकते हैं, बोथ को भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर 3 डिटर्मिनर्स व्हिच फॉल अंडर इन अदर्स कैटेगरी ऑफ प्रीडिटर्मिनर्स। ओके, यू सी हियर, सी द एग्जांपल्स। हाफ ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स यहां नाउन हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ द फ्रूट्स आर रॉटन, द यहां फिर डिटर्मिनर हो जाएगा, फ्रूट से पहले आया है, और उससे पहले आया है हाफ। तो हाफ क्या हो गया? ये प्री डिटर्मिनर हो गया ऑफ अदर कैटेगरी, अदर्स कैटेगरी का प्री डिटर्मिनर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यू सी, बोथ द फ्रूट्स आर रॉटन। दोनों जो फल है वो सड़ गए हैं, ठीक है। रॉटन मीन्स सड़ जाना। बोथ मीन्स दो, बोथ मतलब दो होता है, दो को बोथ बोलते हैं। या सॉरी, इधर कम हियर, आई एम सॉरी। बोथ द फ्रूट्स आर रॉटन, तो द क्या हो गया? द क्या हो गया? फ्रूट्स क्या हो गया? फ्रूट्स नाउन हो गया। द क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। और बोथ क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर विच फॉल्स इन अदर्स कैटेगरी, ठीक है। नाउ यू सी, बोथ द स्टूडेंट्स केम, और एग्जाम्पल बोथ से दिया गया है।
बोथ द, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नाउन हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, द बोथ क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर हो गया अदर्स कैटेगरी में, ठीक है। इसी प्रकार देखो ऑल द स्टूडेंट्स केम, ऑल द स्टूडेंट्स केम, तो स्टूडेंट्स नाउन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, ऑल प्री डिटर्मिनर हो गया अदर कैटेगरी का, क्लियर। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स केम, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स केम, स्टूडेंट्स फिर नाउन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया, हाफ प्री डिटर्मिनर हो गया, क्लियर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ओके, क्लियर हो गया अदर्स कैटेगरी का प्री डिटर्मिनर्स, ओके। अभी और है, नाउ कम टू आर्टिकल्स। तो प्री डिटर्मिनर्स हम लोग खत्म कर दिए, कैटेगरी ऑफ प्री डिटर्मिनर्स खत्म कर दिए, ओके। नाउ कम टू आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूं, पहले डिटेल में नहीं समझाया था, लेकिन अभी मैं आई विल एक्सप्लेन आर्टिकल्स इन डिटेल्स, ओके। आर्टिकल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ओके। आर्टिकल्स ऑल्सो मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज एडजेक्टिव्स, ओके। इसको एडजेक्टिव्स मत समझना है बेटा, ये फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स में भी नहीं आता है। आर्टिकल्स आर डिफरेंट एंड दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स। दिस इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। हम लोग प्री डिटर्मिनर के बारे में पढ़ लिए। अब आर्टिकल्स जो है फर्स्ट डिटर्मिनर है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर्स है। हमने टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा किया था, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा किया था, उसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में बताया था, लेकिन मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। आई डिडंट एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, ओके। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू the types of determiners in detail, and in the first category the determiners under which a determiner comes is articles. So articles are of two types, indefinite and definite. Articles दो प्रकार के होते हैं, indefinite article and definite article, okay। indefinite में क्या क्या आते हैं, a an, और definite में क्या आता है, द। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे। सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, indefinite articles and definite articles. Now you see, a and an are indefinite articles, जो कि मैं बता चुका हूं। a और n कौन सा कैटेगरी में पड़ता है आर्टिकल्स का, इंडेफिनेट आर्टिकल्स में पड़ता है। इंडेफिनेट का मतलब हुआ जो स्पेसिफिक ना हो, विच इज नॉट स्पेसिफिक, जो खास ना हो, ठीक है, जो सामान्य हो, जो जनरल वे में जो यूज होता है। जनरल वे में ए और एन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है इंडेफिनेट। क्लियर। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक। अब जब हम द का यूज करते हैं तो नाउन को स्पेसिफिक बनाते हैं, लेकिन ए और एन का यूज करते हैं तो नाउन को स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन अ जनरल वे, सामान्य रूप से इसका उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन जहां द यूज करते हैं नाउन से पहले, तो वो नाउन बहुत ही खास हो जाता है। खास नाउन से पहले ही द का उपयोग किया जाता है, बहुत स्पेसिफिक नाउन से पहले, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब खास, पार्टिकुलर, ओके। द indefinite articles are used when we talk about people in a general or indefinite way. The indefinite articles are used when we talk about people in a general or indefinite way. No, this is correctly not written. An. It should come here an. I am sorry, there is a printing mistake. Okay, please kindly cooperate with me. An. Indefinite articles are used
when you talk about the people in a general or indefinite way. मैं पहले ही बताया था, जब जनरल बात करते हैं, जनरल नाउन्स की बात करते हैं, ठीक है, और इंडेफिनिट नाउन्स की बात करते हैं, तब हम ए एन का उपयोग करते हैं. गलती से द प्रिंट हो गया है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो ए एन इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स विच आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल इन अ जनरल वे. ओके, एकदम सामान्य रूप से हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, तब हम लोग ए एन का उपयोग करते हैं. इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स का ही और डेप्थ में हम जाएंगे, ठीक है. तो ए एन का मैंने बता दिया, अब इसके बाद द का भी बताएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, बट आई विल टेक अ फीडबैक ऑफ दिस लेसन. व्हाट वी सॉ, we have read today the determinants of predeterminants of others category. It is clear to you. Okay, in other category all both these determinants are there. Then half is also there. Okay, then both cannot be used in singular countable nouns. Both can be used only in plural countable nouns. It's clear? Then we have started articles. So I will be continuing this lesson again in the next class. Thank you.